Hello students, today our topic is the GIMP image editor. GIMP in bracket GNU image manipulation program is a powerful image editor. Even though it is free software, its image processing capabilities have started competing with costly professionals image processing tools. It has so many features and capability that entire book have been written on it. Still, most not managing to cover everything that GIMP has to offer. As such, the explanation in this section has been highly simplified to mask the complexity and provide a quick overview of some basic concept and features of this powerful program. तो GIMP इन ब्रैकेट GNU उसका फुल फॉर्म है इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम. तो ये क्या है? पावरफुल इमेज एडिटर है और ये फ्री सॉफ्टवेयर होने के बावजूद इसकी इमेज प्रक्रिया की जो कैपेबिलिटी है उसकी कंपैरिजन महंगे जो प्रोफेशनल इमेज प्रोसेसिंग टूल्स के साथ की जाती है. और इसके इतने सारे लक्षण और कैपेबिलिटीज़ है कि उन पर पूरी की पूरी किताबें भी लिखी जा चुकी है, फिर भी GIMP की खासियत को कवर नहीं कर पाए हैं. A computer image consists of a rectangular grid of dots called pixels in bracket picture elements. Pixel का मीनिंग होता है picture elements. Image processing generally comes down to manipulation of an image by performing a series of operations on it. Even creation of a new image is done by creating an empty image and then manipulating it. Dozens of image file formats have been developed over a period of decades with different characteristics and applications. Some of the very common image file formats are JPEG in bracket JPG, GIF, BMP, PNG and SVG. While there are dedicated conversions tools, image processing software can also often be used as format converter. GIMP's native file format is XCF, but it has input filters for importing image in most other common formats and output filters for exporting to a wide range of image formats. Hence, a file in one format may be opened in GIMP and saved in another format to achieve conversion. तो एक कंप्यूटर इमेज डॉट्स की जो ग्रिड होती है वो ग्रिड से बनी होती है और उसे हम क्या कहते हैं? पिक्सेल्स. जो बहुत सावधानीपूर्वक और ढेर सारे ऑपरेशन की सीरीज के बाद इमेज का निर्माण होता है और एम्प्टी इमेज का ध्यानपूर्वक निर्माण करके एक नई इमेज को क्रिएट किया जाता है. और कुछ बहुत ही सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट जैसे कि JPEG, GIF, BMP, PNG और SVG है. तो कुछ डेडिकेटेड कन्वर्जन टूल भी है. तो इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर या इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके फॉर्मेट कन्वर्टर के रूप में भी किया जाता है. और XCF GIMP का नेटिव फाइल फॉर्मेट है, परंतु इसमें इनपुट फ़िल्टर होते हैं जो इमेजेस को दूसरे सामान्य फ़ोटो में इंपोर्ट करते हैं और आउटपुट फ़िल्टर इमेज प्रारूपों की एक विभिन्न श्रेणी को एक्सपोर्ट करते हैं. Since different image file formats have different characteristics, you may be warned that some features may be lost if you save the image in the new format. GIMP's own XCF format supports saving in the image file all the features that GIMP itself supports. You may also be prompted to specify various options for conversion. You may change the options or accept the default values for them. तो जैसे कि अलग अलग इमेज फाइल फॉर्मेट के अलग अलग क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुणधर्म होते हैं. तो इसलिए जब आप इमेज को एक नए फॉर्मेट में सेव करते हैं तो उस समय उसके कुछ जो कैरेक्टरिस्ट है वो नष्ट हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं. तो ऐसा संभव हो सकता है. तो GIMP का खुद का XCF फॉर्मेट इमेज फाइल को उसके जो मूल कैरेक्टर इसके साथ सेव करने के लिए उसे सपोर्ट करता है. और आपको कन्वर्जन के लिए अलग अलग जो ऑप्शंस होते हैं उनको स्पेसिफाई करने को भी प्रॉम्प्ट किया जाएगा और आप विकल्प चेंज भी कर सकते हैं या फिर उनके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं.
GIMP is not included on the Ubuntu CDs by default, hence we need to install it first by going to Ubuntu Software Center. Once installed, we may start it by clicking Application, Graphics, GIMP Image Editor, or by clicking an image file and selecting Open with GIMP Image Editor. GIMP has an interface that consists of 3 independently positioned and size windows by default. See figure 8.24. तो GIMP डिफ़ॉल्ट से उबंटू सीडीज़ पर उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए पहले हमें उबंटू सॉफ्टवेयर सेंटर जाकर इसे इंस्टॉल करना पड़ता है। और एक बार इंस्टॉल हो जाने के बाद हम इसे एप्लीकेशन, उसके बाद ग्राफिक एंड GIMP इमेज पर क्लिक करके या फिर इमेज फाइल पर क्लिक करके और ओपन विद GIMP इमेज एडिटर चूज़ करके उसे ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं। और GIMP के इंटरफेस में डिफ़ॉल्ट से 3 जो पोजीशन है और साइज़ है उसकी विंडोज़ होती है। तो ये आप यहाँ पर फिगर 8.24 में उसे देख सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज़ द फिगर 8.24 GIMP इमेज एडिटर. Later version also provide the options of a simpler single window interface. We start working with GIMP by either opening an existing file or creating a new one from the file menu. There are 3 windows. First is the main window, holds the image we are manipulating. Then the toolbox and a window holding several additional tools. And the toolbox contains a large number of tools in the upper part. Hovering over a tool display a tooltip identifying the tool. The lower part display various options available for the currently selected tool. The general way of working is to select a tool from the upper part, change the options in the lower part if needed, and then apply the tool using the mouse in some part of the image in main window. The menu system also contains a large number of operations to choose from. जो लेटर वर्जन आधुनिक जो आवृत्ति है उसको सिंपलर सिंगल विंडो इंटरफेस का ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करती है। और हम जब GIMP के साथ वर्क करने के लिए फाइल मेनू में से करंटली जो वर्तमान फाइल को ओपन करते हैं या नई फाइल को क्रिएट करते हैं तो इसमें 3 विंडोज़ होते हैं। तो फर्स्ट है उसमें मुख्य विंडो, जो हम मेन विंडो जो हम विंडो को मैनिपुलेट कर रहे हैं उसे टूल बॉक्स और विंडो को जो अलग अलग टूल को होल्ड करती है। और टूल बॉक्स के ऊपरी भाग में बहुत सारे टूल्स होते हैं और टूल पर होवर करने से वो टूल को पहचान करते टूल टिप आपको डिस्प्ले करते हैं। और जो निचला भाग, जो नीचे का जो पार्ट होता है, तो उस समय चूज़ किए गए जो टूल के लिए उपलब्ध अलग अलग विकल्पों को डिस्प्ले करता है। कार्य करने का सामान्य तरीका ऊपर जो पार्ट है उसमें से टूल को सिलेक्ट करना और अगर ज़रूरी हो तो जो नीचे का जो पार्ट है उसके विकल्प होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, उसको चेंज करना और उसके बाद मेन्यू विंडो में इमेज के कुछ पार्ट को माउस का उपयोग करते हुए टूल को टूल पर अप्लाई करना। और मेन्यू सिस्टम में भी पसंद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको होते हैं। An image may also have some transparent areas. By default, GIMP displays the transparent area using a checkered pattern. However, we may change this behavior from the Edit Preferences menu item. The display section has transparency subsection that allows us to set the check size as well as check color. We may set the check style to white only if we wish. If an image having transparent area is overlaid over another image in the transparent portion, we can see the image behind it. See figure 8.25. तो इमेज में कुछ ट्रांसपेरेंट एरियाज़ होते हैं तो डिफ़ॉल्ट से GIMP चेक पैटर्न का यूज़ करते हुए जो ट्रांसपेरेंट एरिया है उनको दिखाता है। और अगर हम चाहें तो मेनू आइटम के एडिट मेनू, उसके बाद उसमें होता है प्रेफरेंस मेनू, उसका यूज़ करके ये बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं। और हम चाहे तो वाइट ओनली से चेक स्टाइल भी सेट कर सकते हैं। और अगर ट्रांसपेरेंट एरिया वाली एक इमेज दूसरी इमेज पर ओवरलोड हो गई हो तो उसे जो ट्रांसपेरेंट पार्ट्स है उससे हम इमेज को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर 8.25 है, उसमें आपको ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरलेइंग ये आपको दिखाया गया है। सो डिड यू वंडर हाउ द फर्स्ट इमेज वॉज ओवरलेड ओवर द सेकेंड? GIMP, like other
sophisticated image editor supports layer. Figure 8.24 shows the Layers tab in the right hand side window. It allows us to create and manipulate layers. Each layer can hold one image, part of which may be transparent. Each layer can be manipulated individually. The order of layers can also be changed. You may think of an image with multiple layers as consisting of multiple transparent sheets of glass stacked on top of one another, with images painted on them, leaving some parts transparent. When viewed from the top, we see the image on the top sheet, but through its transparent part we can see the image on the second sheet, third sheet, and so on. Figure 8.26 taken straight from the GIMP manual explains this concept. तो फिगर 8.24 में जो राइट साइड की विंडो में आपको लेयर्स दिखाया गया है, और ये हमें लेयरों को क्रिएट करने और मैनिपुलेट करने की परमिशन भी आपको प्रोवाइड करता है। प्रत्येक लेयर एक इमेज होल्ड कर सकता है जिसके भाग क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, और प्रत्येक लेयर व्यक्तिगत रूप से मैनिपुलेट भी उसे किया जा सकता है। और आप बहुस्तरीय एक ऐसी इमेज के बारे में सोच सकते हैं जिसके टॉप पर एक दूसरे पर ढेर हुई कांच की मल्टीपल पारदर्शक शीटें हो। पारदर्शक मीन्स ट्रांसपेरेंट, जिन पर कुछ ट्रांसपेरेंट पार्ट्स को छोड़कर इमेज छपी हो। ऊपर से देखने पर हमें इमेज को दूसरी शीट, तीसरी शीट और इस प्रकार आगे हम उसे देख सकते हैं। तो GIMP मैनुअल में सीधी ली गई ये फिगर है 8.26। तो ये अवधारणा को आपको व्याख्यायित करती है, आपको उसको कॉन्सेप्ट शो करती है। क्वाइट ऑफन यू मे वांट टू सिलेक्ट अ पोर्शन ऑफ द इमेज एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस ओनली ऑन द सिलेक्टेड एरिया। तो शायद आप इमेज के एक ही पोर्शन को पसंद करना चाहेंगे और जिससे केवल सिलेक्ट किए हुए पोर्शन पर ही आप कुछ ऑपरेशन करना चाहेंगे। GIMP provides various selection tools for this purpose. For example, the rectangle select tool allows us to select rectangular areas by default. Making a new selection removes the previous selection. Through this behavior can be changed. तो GIMP ये कार्य के लिए कुछ सिलेक्शन आपको टूल प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल के लिए रेक्टेंगल सिलेक्टेड टूल हमें रेक्टेंगुलर एरिया को चूज़ करने की अनुमति आपको देता है, और डिफ़ॉल्ट से नया सिलेक्शन बनाते ही आप पुराना सिलेक्शन होता है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर आप फिगर 8.26 में देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर्स के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। GIMP हैज़ अ नोशन ऑफ द करंट फोरग्राउंड कलर एंड द करंट बैकग्राउंड कलर। तो GIMP एक करंट फोरग्राउंड कलर और करंट बैकग्राउंड कलर का क्या है, नोशन है। नोशन मीन्स मंतव्य है। दिस कलर्स आर यूज इन वेरियस टूल्स फॉर ड्राइंग एंड फिलिंग। तो ये कलर्स है, उनका यूज़ किस में होता है, ड्राइंग और फिलिंग में। हैंस बिफोर यूजिंग टूल्स दोज टूल्स वी शुड सेट the foreground and background tools the way we want. The bottommost tool in the upper part of the toolbox is used to set these options. In fact, the color of the partially covered rectangle is the current background color, and the color of the rectangle covering it is the current foreground color. By default, these are white and black respectively. To change the foreground or background color, click on the appropriate rectangle in the tool, which will be open and color selection dialog as shown in figure 8.27. तो कलर्स का टूल और ड्राइंग और पूर्ति में भी उपयोग होता है, इसलिए इन टूल का यूज़ करने से पहले हम अपनी इच्छा अनुसार फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को जो टूल्स होते हैं उनके उसे सेट कर सकते हैं। और टूल बॉक्स के ऊपर के भाग में और सबसे नीचे का टूल ये ऑप्शन की सेटिंग के लिए आपको यूज़फुल होता है। तो हकीकत में क्या होता है कि आंतरिक जो अंदर के जो होते हैं इंटरनल, वो ढके हुए आयतकार का रंग करंट बैकग्राउंड और ढकते आयतकार का कलर करंट फोरग्राउंड रंग है। डिफ़ॉल्ट से ये क्रमशः सफ़ेद और वाइट एंड ब्लैक कलर में होता है। फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए टूल में रहे योग्य
योग्य रेक्टेंगल को आपको टूल होते हैं उनको सिलेक्ट करना होगा, जो यहाँ पर आपको फिगर 8.27 में दिया गया है। सी दिस इज़ द फिगर 8.27 चेंजिंग फोरग्राउंड कलर। तो आप ये कलर्स का यूज़ करके बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर उसे चेंज कर सकते हैं। द डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेज द ओल्ड मीन्स ओरिजिनल कलर एंड द करंट मीन्स न्यू कलर। Initially both are same. While there are so many ways of selecting the colors we want, we shall use one of the two simple methods. First, if you know the exact English name for the color, you may type the first letter of the color name in the HTML Notion field, which will open up a list of all colors starting with that letter along with previous. You may select the color you want by clicking on the same color name. The other simple way is to select the color you want from the vertical rainbow strip besides the large shaded rectangle. This will fill the large rectangle with shades of that color. Now click at the point in the rectangle that has the exact shade you want. The current color field will change to reflect your choice. If you like it, click OK to set the color, otherwise continue to experiment. तो ये जो डायलॉग बॉक्स है वो ओल्ड कलर और जो करंट मीन्स न्यू कलर्स है उनको डिस्प्ले करता है। और असल में क्या होते हैं, दोनों एक ही है। आपके मनपसंद रंग चुनने के बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ पर हम उसमें से दो मेथड का यूज़ करना सीखेंगे। तो उसमें फ़र्स्ट कौन सा है कि आपको कलर के सिंगल कलर और जैसे रेड या फिर ऑरेंज के लिए कोई कठिन नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर किसे कहते हैं और ऑरेंज कलर किसे कहते हैं। तो जो कलर है उसका सही इंग्लिश नेम आप जानते हो तो उसका पहला अक्षर HTML नोशन फील्ड में आपको टाइप करना है। तो वो अक्षर से जो शुरू होने वाले कलर्स है उसकी लिस्ट आपके सामने होगी और आप उसमें से आपका जो कलर है उस पर क्लिक करने से आप वो कलर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका कौन सा है कि बड़े शेडेड होते हैं, जितना संभव हो सके उतना कि उसके पास बड़े शेडेड रेक्टेंगल होते हैं, तो उसमें जो रेनबो स्ट्रिप होती है उससे हम कलर चेंजेस कर सकते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं। और ये उस जो बड़े जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसको कलर फील्ड कलर से शेड कर देगा और उस रेक्टेंगल के उस भाग पर आपको क्लिक करना है जिस शेड आप वो कलर में करना चाहते हो। करंट कलर फील्ड आपके जो मनपसंद कलर में आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर आपको कलर पसंद हो तो आपको ओके पर क्लिक करना है और उसके बाद क्या करना है, आपका एक्सपेरिमेंट चालू रखना है, कंटिन्यू रखना है। So our new topic is creating new image. Now we shall start by creating a blank image and perform a series of operations in sequence. Each stage of the operations is shown in figure 8.28. Continue to refer to it as each operation is described. First, create a new image by selecting File, New Options from the menu. You need to specify the size of the image, which may be in terms of pixel, inches, millimeters, etc. The image is initially blank. Now select a rectangular area in the image. First, click on the rectangle select tool. Move the mouse pointer to one corner of the rectangle you want to draw on the image. Press the left mouse button and drag to the other corner. Finally, click inside the rectangle to finalize the selection. At this point, we have only selected an area in the image, but we have not changed anything in the image. Selections are transient in nature and a new selection removes the previous one by default. Now let us draw a line along the border of the selection. Click on the menu option Edit Stroke Selection, which opens a dialog box. See figure 8.28. We may select the thickness of the line and the dash pattern among the host of options. The line will be drawn using the current foreground color. While a square selection can be done in the same way, to get an exact square, follow these steps. First, select the same rectangle select tool and start dragging from one corner of the sequence you want to select without releasing
releasing the mouse button, press the shift key which will force the rectangle to be a square. When you get the right size, release the mouse button first and then the shift key. As GIMP is very powerful software with so many options, different combinations of mouse and keyboard actions, and even the order in which these actions are taken result in different operations taking place. See figure 8.28 shows a perfect rectangle drawn in the figure. See this is figure 8.28. तो अब हम क्या करेंगे, एक ब्लैंक इमेज बनाना शुरू करेंगे और उस पर क्रमिक ऑपरेशन भी करेंगे। ऑपरेशन की हर स्टेज यहाँ पर फिगर 8.28 में आपको दर्शाई गई है। बताए गए अनुसार प्रत्येक ऑपरेशन को रिफ़र करना आपको चालू रखना है, मीन्स कंटिन्यू रखना है। और सबसे पहले मेनू में से फाइल मेनू में न्यू जो ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है और एक नई इमेज आपको क्रिएट करनी है। और आपको इमेज की साइज़ पिक्सल, इंच, मिलीमीटर जैसे टर्म में आपको निश्चित करनी होगी। और इमेज वास्तव में क्या होती है, ब्लैंक होती है। तो ये आपको यहाँ फिगर में आपको शो होती है कि रेक्टेंगल जो फिगर है वो ब्लैंक होती है। अब इमेज के जो रेक्टेंगल एरिया है उसको आपको पसंद करना है, मीन्स चूज़ करना है। और पहले रेक्टेंगल सिलेक्ट टूल पर आपको क्लिक करना होगा और उससे रेक्टेंगल के जिस कॉर्नर पर या इमेज पर ड्रॉ करना चाहते हैं उस पर आप माउस पॉइंटर को आपको रखना है और लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करना है दूसरे कॉर्नर पर। उसके बाद आपको ड्रैग करना है और लास्ट में क्या होगा, सिलेक्शन को फाइनलाइज करने के लिए आपको रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करना होगा। तो वो आप यहाँ पर फिगर 8.28 में आप उसे देख सकते हो। अभी तक हमने ओनली इमेज के जो क्षेत्रफल है उसको, एरिया है उसको ही पसंद किया है, परंतु हमने इमेज में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर 8.28 में आपको शो होता है। तो सिलेक्शन होने के बाद और डिफ़ॉल्ट से नया सिलेक्शन पहले सिलेक्शन को हटा देता है। तो सिलेक्शन के बॉर्डर पर एक रेखा आपको खींचनी है और मेनू ऑप्शन में एडिट मेनू में से आपको स्टॉक सिलेक्शन विकल्प आपको पसंद करना है और उस पर क्लिक करना है, जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा। और हम ऑप्शंस के पेशकश में से लाइन की जो थिकनेस है वो और उसकी पैटर्न पसंद कर सकते हैं। और करंट फॉरग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चूज़ करके उसका यूज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जो सबसे पहला रेक्टेंगल टूल आपको पसंद करना है और आप जिस कॉर्नर से चाहते हो उससे आपको ड्रैग करना स्टार्ट करना है। और माउस बटन को रिलीज़ किए बिना, मीन्स छोड़े बिना आपको शिफ्ट की प्रेस करके आपको क्या करना है, रेक्टेंगल को वर्क बनाने के लिए आपको फोर्स करना है। और जब आपको सही साइज़ मिल जाए तो आपको पहले माउस बटन को रिलीज़ करना है और उसके बाद शिफ्ट की को, जैसे कि GIMP बहुत से विकल्पों एक बहुत शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है, तो माउस और कीबोर्ड के संयोजन से बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग ऑर्डर में किए जा सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर फिगर 8.28 में एक पूर्ण आयत इसी तरह खींचा हुआ आपको शो किया गया है। यहाँ आप वो देख सकते हैं। यह फर्स्ट है रेक्टेंगल विथ बॉर्डर और ये है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। We may use the ellipse select tool to select ellipse and with shift perfect circles in the same way figure 8.28 and figure 8.28G respectively. So यहाँ पर क्या दिया है कि हम ellipse select tool का यूज़ करके जो अंडे आकार का होता है तो अंडाकार सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ परफेक्ट वृत्त उसी तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप फिगर F में क्या देख सकते हो, 8.28 F में ये जो है ये कौन सा शेप है, इलिप्स टूल, ये अंडे आकार का होता है। ओके, यहाँ भी है आप देख सकते हो। एंड सेकंड फिगर है इलिप्स एंड सर्कल, इलिप्स टूल भी है और उसके साथ में सर्कल भी है। ओके, the free selection tool allows us to select an area of arbitrary shape. Start at any point of the shape you want to select and holding down the mouse button move the mouse cursor as if you were drawing with a pencil.
If a part of the shape is a straight line, release the mouse button when drawing that part, which will draw a perfect straight line. You must close the shape by ultimately reaching back to your starting point before releasing the mouse button, because all selections must be closed shape. A polygon consisting of arbitrary shape can be drawn using the free selection tool. To draw a polygon, just go on clicking on the point of the polygon in sequence, clicking on the first point again at the end. फिगर आपको ये 8.28 I में आपको ये शो होगा. Then if you want to fill a shape with same color, there are two options. Immediately after selecting the shape, select Edit Fill with FG Color menu option, which will fit the selection with the current foreground color as shown in figure 8.28G. After this, you may change the background color and stroke the figure to get a border if you want. The other alternative is to select the bucket fill tool and click on any point inside the shape we want to fill. See figure 8.28K. तो यहाँ पर आपको क्या दिया है कि फ्री सिलेक्शन टूल का यूज़ करके हम जो अल्बिटरी मीन्स मनस्वी आकार का एरिया है वो आप यहाँ पर बना सकते हो, और आप पसंद किए गए आकार से किसी भी पॉइंट से माउस बटन को दबाए रखकर माउस बटन कर्सर को पेंसिल की तरह आप उसे मूव कर सकते हो. और अगर टॉप का ये भाग सीधी लाइन है तो उसे ड्रॉ करते समय माउस बटन को आपको छोड़ देना है, जिससे एकदम सरल रेखा, एकदम स्ट्रेट लाइन आप खींच पाओगे. और माउस बटन को छोड़ने से पहले आपको अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस पहुंचना होगा, क्योंकि सारे सिलेक्शन बंद आकृति होने चाहिए. यहाँ पर आपको फिगर 8.28 में दिख रहा है कि फ्री सिलेक्शन टूल का यूज़ करके मनस्वी आकार का एक बहुकोण यहाँ पर ड्रॉ किया जा सकता है. और बहुकोण बनाने के लिए बहुकोण के बिंदुओं पर जो पॉइंट्स है उन पर क्रमशः आपको क्लिक करते जाना है, और पहले बिंदु पर वापस आते हुए फिर से आपको यहाँ क्लिक करना है. ये आप फिगर 8.28 I में आप ये देख सकते हो. और अगर आप किसी भी आकार में कलर फिल करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शंस है. पहले तो आकार सिलेक्ट करने के बाद तुरंत आपको एडिट मेनू में फिल विथ FG कलर मेनू को पसंद करना होगा, जो यह आकृति 8.28J में उसे देख सकोगे, और उसमें बताए गए अनुसार सिलेक्शन को करंट फॉरग्राउंड कलर से भर देगा. और इसके बाद अगर आप चाहे तो बैकग्राउंड कलर को बदले और बॉर्डर पाने के लिए फिगर को स्ट्रोक करना होगा. और दूसरे विकल्प है बकेट फिल टूल का आप चूज़ करेंगे, और हम जिस पॉइंट पर कलर करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है, वो आपको फिगर 8.28 में आपको शो होगा. सी दिस इज़ द फिगर 8.28 प्लेसिंग इमेज इन GIMP. यहाँ पर आपको हमने क्या किया है, जो फिगर ड्रॉ किया उसमें हमने अभी कलर फिल किया है. इट विल ओनली फिल द innermost immediately enclosing shape. You may have to click repeatedly to fill different parts of a shape as shown in figure 8.28M. This gives you an opportunity to fill different parts of a shape with different colors if required. If you click in an open area or a shape that is not closed by solid color from all sides, the fill color will split over outside and fill ऑल ओपन एरियाज ऑफ द इमेज. तो इसमें क्या होता है कि ये सबसे अंदर के जो पार्ट है उसमें कलर करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. और अगर आप किसी भी ओपन एरिया या फिर आकृति पर क्लिक करें तो अगर आप किसी भी ओपन एरिया या फिर ओपन फिगर है उस पर क्लिक करेंगे कलर करने के लिए, तो जो कलर है वो जो फिगर है उसके अंदर तो होगा नहीं कलर, पर जो बैकग्राउंड है उसमें भी साथ में हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल भी दिया है. फॉर एग्जाम्पल, क्लिकिंग ऑन द पॉइंट मार्क विथ ग्रीन इन फिगर 8.28 एंड द कलर विल फ्लो आउट एंड फिल ऑल ओपन एरियाज एज शोन इन फिगर 8.28O because the shape in questions is open. Fortunately, if you commit any mistake and want to correct it, you can always undo your last action in reverse order by selection edit undo option or the shortcut key Ctrl+Z. We undo the last fill before continuing. तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है कि यहाँ आपको फिगर 8.28N में जो ग्रीन कलर है उसे मार्क किए गए पॉइंटर पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर. ओके, तो मार्क करने के बाद क्या होगा, जो ग्रीन कलर है वो फिगर में फिल होगा.
पर ये फिगर क्लोज नहीं है, ये फिगर ये साइड से ओपन है, तो ये जो ग्रीन कलर है वो पूरे जो बैकग्राउंड है उसमें भी फैल जाएगा, मीन्स यहाँ पर भी पूरा फैल जाएगा। यहाँ पर आप फिगर 0 में ये जो है पूरी फिगर यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन कलर है वो फिगर में भी फिल हुआ है और ये जो बैकग्राउंड है उसमें भी फिल हो चुका है। तो इस तरीके के जो कलर्स है उसे डिलीट करने के लिए, मीन्स हमने जो कलर किया हमें तो सिर्फ फिगर में ही करना था पर ये पूरा बैकग्राउंड में हो गया है, तो इसे डिलीट करने के लिए, तो इस तरीके की जो एक्शंस होती है उसे डिलीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट मेन्यू में जाके आपको अंडू का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना होगा, या फिर आप Ctrl+Z की प्रेस कर सकते हो। बट वेट, डिड यू नॉट रीड दैट ऑल सेक्शंस मस्ट बी क्लोज्ड? देन हाउ डिड वी लैंड विथ एन open space in the first place? Another question, how do you put a dot in a figure or draw a line? Well, the answer to these questions is using the pencil tool. When you select the pencil tool and click anywhere in the image, a tiny circle is drawn and filled with the foreground color. You may go on clicking like this to create more circles at different locations in the image. If you hold down the shift key when clicking, a straight line is drawn in place of a circle, connecting a previous point to the current one. One may draw such lines anywhere one wishes, and shapes created using such lines need not be close. तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनका आंसर ऐसा है कि आपको पेंसिल टूल का यूज़ करना होगा। तो जब आप पेंसिल टूल का यूज़ करोगे तो इमेज में कहीं पर भी आप क्लिक करते हो तो एक डॉट उसकी लाइन से खींचा जाता है और वो फोरग्राउंड कलर से भी भर जाता है। तो आप इमेज के अंदर इस प्रकार अलग अलग लोकेशन पर क्लिक करके सर्कल भी बना सकते हैं। और अगर आप क्लिक करते समय शिफ्ट की है उसे साथ में प्रेस करोगे तो सर्कल के बदले में एक वहाँ पर लाइन ड्रॉ होगी जो पिछले जो डॉट है उनको आगे के बिंदु से जोड़ जाती है, उसके जोड़ देगी। और ऐसी लाइन कोई भी जहाँ चाहे वहाँ खींच सकते हैं और अलग अलग शेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। Next is, what do you do if you are making a pencil drawing and want to correct something? You use an eraser. Indeed, GIMP also provides an eraser tool that can be used to erase parts of the drawing. Unlike the real world eraser, GIMP's eraser can change both the size and shape as per your wish. Figure 8.28p shows the image after we erase some portions with a large circular eraser. Using the text tool, one may write text in the image. One gets to choose font size, color, etc. Clicking anywhere in the image brings a dialog in which you may type the text. The text appears at the location where you type. It can be corrected or moved immediately after creation by clicking inside. You correct the text in the dialog that opens and move the text by dragging it. तो अगर आप कोई भी पेंसिल ड्राइंग कर रहे हो और कुछ उसमें सुधारना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, तो आपको रबर जो इरेज़र है उसका आपको यूज़ करना होगा। और GIMP में भी एक इरेज़र टूल होता है जिसका यूज़ आप ड्राइंग के पार्ट को इरेज करने के लिए करते हो, वो तो आपको पता है। और रियल वर्ल्ड इरेज़र की तरह नहीं, परंतु GIMP का इरेज़र आपको आपकी इच्छा के अनुसार साइज़ और शेप दोनों में भी चेंज कर सकता है। तो टेक्स्ट टूल का यूज़ करके आप कोई भी इमेज में टेक्स्ट भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आपको फिगर 8.28 में फॉन्ट, उसकी साइज़, कलर एक्सेट्रा ये जो चीज़ें हैं वो आपको चूज़ करना पड़ता है। और इमेज में कहीं भी क्लिक करने से ये डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा और जिसमें आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं और आपने जहाँ टाइप किया वहाँ आपको टेक्स्ट शो होगा। इसमें अंदर क्लिक करने के बाद तुरंत इसे सुधारा या फिर मूव भी किया जा सकता है। यहाँ आपको दिया है कि इरेजिंग शेप एंड दूसरी है जो राइटिंग टेक्स्ट, जहाँ पर टेक्स्ट आपको लिखे गए हैं। और यहाँ पर आपको इरेज़र का शेप दिया है, तो इरेज़र का शेप है सर्कल और यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर टाइप किए गए हैं। द एक्ट ऑफ कटिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द इमेज आउट इज़ कॉल्ड क्रॉपिंग। द क्रॉप टूल इज़ यूज टू क्रॉप द इमेज। क्रॉप टूल का यूज़ किस लिए होता है, इमेज को क्रॉप करने के लिए। एंड आफ्टर सिलेक्टिंग इट वी यूज ड्रैग एंड ड्रॉप टू ड्रॉ रेक्टेंगल ऑन द इमेज। The reset of the image is darkened to highlight the rectangle. If we click inside the rectangle we have drawn, the image is cropped to that rectangle.
For example, everything outside that rectangle is cut out from the image. An image can be scaled. For example, its size change by selecting the menu item image, scale image. In the dialog that appears, we change either the height or width, and the other will automatically change correspondingly and maintain the aspect ratio. If we click on the little change symbol between these two, it breaks the lines and allows us to change both arbitrarily, not caring to maintain aspect ratio. तो इमेज के कोई भी भाग को कट करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्रॉपिंग कहते हैं, और इमेज को क्रॉप करने के लिए हम इसका यूज़ भी करते हैं। तो इसको चूज़ करने के बाद इमेज पर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हम ड्रैग और ड्रॉप का यूज़ करते हैं। तो ये आपको फिगर 8.28 में आपको शो होगा, और बाकी की जो इमेज है उसको रेक्टेंगल को उभारने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। और अगर हम ड्रॉ किए गए रेक्टेंगल के अंदर क्लिक करेंगे तो इमेज वो रेक्टेंगल से क्रॉप हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा होता है उसमें कि एक इमेज स्केल की जाती है, और मेनू आइटम में आपको इमेज मेनू में स्केल इमेज आपको उसको पसंद करना होगा, और उसकी साइज़ भी चेंज की जा सकती है। मीन्स उसकी साइज़ इंक्रीज़ भी की जा सकती है और डिक्रीज़ भी की जा सकती है। और आपको जो डायलॉग बॉक्स शो होगा उसमें हम हाइट या फिर विड्थ भी उसकी चेंज कर सकते हैं, और अन्य सभी जो अपने आप एस्पेक्ट रेशियो उसके मीन्स उसका होता है कि विड्थ से हाइट का अनुपात को बनाए रखने के लिए उसको चेंज हम कर सकते हैं। इफ़ यू डू दिस ऑन अ पर्सन's photograph, the person may look fatter or thinner in the scale image. And yes, if you remember the facilities provided by the eye of genome viewer, what that simple program can do, GIMP can do too. An image can be rotated or flipped by selecting the appropriate option from the image transform menu item. Figure 8.28T shows the image after rotation by 90 degree clockwise. तो यहाँ आपको क्या है कि अगर इमेज में ज़्यादा पतला या फिर आपको मोटा आप कर सकते हो, और अगर हाँ तो आपको जीनोम व्यूअर की आंख द्वारा प्रदान की गई जो सुविधा है फैसिलिटी, उसको अगर वो आपको याद हो तो जो कुछ सिंपल प्रोग्राम है वो आप कर सकते हो, और वो GIMP भी कर सकता है। मेनू आइटम में से योग्य ऑप्शन इमेज उसके अंदर है ट्रांसफॉर्म, उसको पसंद करके इमेज को या फिर रोटेट भी कर सकते हो आप, या फिर उसको फ्लिप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको फिगर 8.28 में आपको वो 90 डिग्री फिगर को मूव की गई है वो आपको शो होगी। उसमें सबसे पहले है क्रॉपिंग इमेज, इमेज को क्रॉप वो दिखाया गया है। देन सेकेंड है स्केलिंग इमेज, एंड थर्ड इज़ रोटेटिंग, 90 डिग्री उसको रोटेट किया गया है। इवन though we have covered only basic features of GIMP in this text, it has probably become clear to you that GIMP is a very powerful and feature-rich image editor. तो हमने इस टेक्स्ट में केवल GIMP के जो मेन सिद्धांत है उसको कवर किया है, और शायद आपको समझ में आ गया कि GIMP एक बहुत पावरफुल और फीचर रिच इमेज एडिटर है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ओवर होता है। तो आपको वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है और सुनना है।